Good afternoon, students. Today we will continue our second lesson of history, nationalism in India, and we learn about the Rowlatt Act. The Rowlatt Act. The Rowlatt Act in 1919 was passed through the Imperial Legislative Council in spite of opposition of the Indian members. Rowlatt Act gave the government enormous power to repress political activities. According to this act, the political prisoners could be detained in prison for 2 years without any trial. Gandhiji decided to try to oppose it with Satyagraha. Now we learn it in detail. Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. This act has been passed very quickly through the Imperial Legislative Council, and the Indian opposed this act, but they passed very quickly. It gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners. Detention means they kept political prisoners without trial, without any evidence, for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such laws, which would start with the Hartal on 6th April. Now what happened in this Hartal? Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down. Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegram would be disrupted, means they were damaged. The British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was banned from entering Delhi. And on 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. And what is this martial law? Martial law said that the group was not formed and more than two people were not gathered in one place, and this law is known as martial law. Now all of you know that Jallianwala Bagh massacre. In 8th class you have already learned about Jallianwala Bagh massacre. On 13th April, Jallianwala Bagh massacre, this incident took place. On that day, what happened? On that day, large people gathered in a peaceful meeting in Amritsar, Jallianwala Bagh. And why the people were gathered in that place? Because the two leaders of Congress were arrested by Britishers. And to oppose this act, the people gathered in Jallianwala Bagh and a peaceful meeting was there. What happened? All of you know that. Being from outside the city, many villagers also
came to Jallianwala Bagh. They didn't know about the martial law. General Dyer entered in the Jallianwala Bagh, and he closed all the gates. And you know already there was only one gate to enter in Jallianwala Bagh. All of you know that, na? Dyer entered the area and opened fire on the crowd, killing hundreds of people. And why he fired on the people? Because he wanted to create terror in the minds of the Indians. And therefore, what was his aim? He declared later that he ordered his policemen to fire on the people because he wanted or produce a moral effect to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror. And when this news reached or when this news spread, crowds took the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, and attacks on government buildings. The government responded with brutal expression, seeking to humiliate the terrorized people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground. Understand? And seeing this violence, Mahatma Gandhi called off the movement because he was against violence. While the Rolak Satyagraha had been widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. But what happened? But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindu and Muslim close to each other. And therefore, what he did? One way of doing this he felt was to take up a Khilafat issue. And what is the Khilafat issue? All of you know that Shaukat Ali brothers. There was injustice with the Turkey, because Turkey was some part of Turkey was in the hands of Britishers and some for others, and therefore the Turkey people were not happy, and therefore in India, to support the Turkeys, Shaukat Ali brothers started Khilafat movement. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Emperor. And who are Ottoman Emperor? Emperor of Turkey. The spiritual head of Islamic world, the Khalifa. To defend the Khalifa's temporal powers, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. And a young generation of Muslim leaders like brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. And Gandhiji saw this an opportunity to bring Muslims under umbrella of a unified national movement. And in Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders of the Congress to start a non-cooperation movement in support of
Khilafat as well as for Swaraj. Now we learn in Hindi. The Rowlatt Act. रोलैक्ट एक्ट 1919 में भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया था। रोलैक्ट एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्ति प्रदान की। इस अधिनियम के अनुसार राजनीतिक बंदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। गांधी जी ने सत्याग्रह के साथ इसका विरोध करने का फैसला किया। अब रोलैक्ट एक्ट क्या था? ये रोलैक्ट एक्ट, तो रोलैक्ट एक्ट इस कानून के ज़रिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। और इसके पहले क्या हुआ था कि ये रोलैक्ट एक्ट पारित करने के लिए क्या किया था? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, जो कि ब्रिटिशों के लिए कानून बनाती है, इसका नाम था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी इस एक्ट को, इस कानून को पारित कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि विरोध होने से पहले इसको पारित किया जाए। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि बहुत जल्दी इसको पारित कर दिया था। और क्या था रोलैक्ट एक्ट? फिर से एक बार, रोलैक्ट एक्ट के अनुसार क्या किया था उन्होंने कि राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए वो जेल में रख सकते थे, मतलब ज़बरदस्ती जेल में डाल सकते थे किसी सबूत के बिना। अब इसका असर क्या हुआ? और ये सब जब हुआ तो इसका विरोध करने के लिए 6 अप्रैल से एक हड़ताल शुरू होना था। अब उसके लिए क्या हुआ? विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन आंदोलन को देखते हुए रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं का भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। तो इससे क्या हुआ? इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे और क्या कर दिया? मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डायर ने वहाँ की कमान संभाल ली। तो अब ये मार्शल लॉ क्या था? तो 2 व्यक्तियों से ज़्यादा लोग ग्रुप नहीं बना सकते थे, मतलब समूह नहीं बना सकते थे और 2 से ज़्यादा लोग किसी भी जगह पे 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। इसको कहा जाता था मार्शल लॉ। और अब हम पढ़ते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप सब लोगों को पता है जालियांवाला बाग में क्या होता? आप 8वीं में जब थे तब आप पढ़ चुके हो ये जालियांवाला बाग। फिर से हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि अमृतसर में क्या था? ये रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के 2 नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को अंग्रेज़ों ने जेल में बंद कर दिया था। उनका नाम भी आप लोगों को पता है ना? कुचलू
और इसके लिए एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन जालियांवाला बाग, अमृतसर के जालियांवाला बाग में कर दिया गया था, है ना। ये पता है ना आप लोगों को। तो क्या हुआ था, इसके लिए काफ़ी लोगों को जो इसमें शामिल थे, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू किया गया है। अब कुछ लोग काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। और अगर आपको पता ही है कि जालियांवाला बाग में जाने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा था, मतलब अंदर जाने के लिए भी एक दरवाज़ा और बाहर निकलने के लिए भी उसी दरवाजे का उपयोग करना पड़ता था। अब जनरल डायर ने क्या किया, हथियार बंद सैनिकों के साथ वहाँ जो लोग एकत्रित हुए थे, बिना किसी घोषणा के उनके ऊपर क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई दी। इसका क्या परिणाम हुआ, तो सैकड़ों लोग मारे गए। और बाद में जनरल डायर ने बताया कि उसने ये गोलियां जालियांवाला बाग के भीड़ पर इसलिए चलाई ताकि भारतीयों के दिमाग में अंग्रेज़ों के विरोध में जाने से पहले दहशत फैल जाए। और उसने बोला भी कि क्या, कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके वो एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। और आप लोगों को तो पता ही है ना कि जालियांवाला बाग में सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और जालियांवाला बाग में जो कुआं था, जान बचाने के लिए वो कुएं में कूद गए और वो कुआं पूरा लाशों से भर गया, क्योंकि एक के ऊपर एक लोग वो कुएं में कूद गए तो सांस लेने के लिए उनके लिए जगह ही नहीं बची। और आप सब लोगों को याद होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ये जब पूरा ये जो खूनी खेल जालियांवाला बाग में चल रहा था, वो एक छोटा बच्चा जिसका नाम था उधम सिंह, वो अपने घर के छत पे से देख रहा था। और आगे चल के यही उधम सिंह क्या किया, ब्रिटेन में जाकर उसने इस जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। अब जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर पूरे भारत में फैली तो क्या होने लगा, लोग सड़कों पे उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। और इन सब कार्रवाइयों को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत क्रूर उपायों का रास्ता अपनाया। और सरकार लोगों को आतंकी करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने क्या करवाया, सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने के लिए और साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए। और हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे। भले ही रोलैक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, पर फिर भी मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। तो इसका क्या हुआ, महात्मा गांधी पूरे भारत में और लोगों का साथ पाकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। पर उनका ये मानना था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एकजुट नहीं हो सकते, तब तक ये आंदोलन चलाया नहीं जा सकता। और उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। तो ये खिलाफत यानी क्या, तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की में क्या हुआ कि
तुर्की की हार की वजह से तुर्की जो राष्ट्र जीत गए थे उनके बीच में बट गया था और तुर्की के साथ ये जो अन्याय हुआ था उसके समर्थन के लिए भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने खिलाफत का गठन किया था। और अब अंग्रेज़ों को ये मौका गांधी जी को ये मौका मिल गया खिलाफत का कि वो भारत के हिंदू मुस्लिमों को नज़दीक ला सके। और इन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी के साथ इन दोनों भाइयों ने चर्चा करना शुरू कर दिया और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सभी दूसरे नेताओं को राज़ी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और स्वराज के लिए एक आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए।